Now let's see the one more scenario and tell me in that case there is a deadlock or not. So here it is a resource R1 and it is allocated to resource, it is allocated to process P1. P1 is requesting for resource R2 and R2 is allocated to process P2 and P2 is requesting for resource this R1 and one more instance it is having which is allocated to process P3. It is allocated to process P3 and here one more instance that is allocated to process P4. Okay, so it is allocated to process P4. It means it is also having two instances, this one and this one. Okay, so now tell me, is there a deadlock or it is deadlock free? Okay, okay, deadlock free. Okay, so all the answers are correct. So it is deadlock free. There is no deadlock in this case also. How? So here this resource R1 having two instances. One is allocated to process P1 and one is allocated to process P3. So P3 required only one process, one resource. So once it is getting the resource, it will complete its execution and it will release the resource. Okay, तो अब क्या हो गया, ये वाला फ्री हो गया. Once it is releasing the resource, this resource is given to the process P2. तो ये किसको मिल जाएगा, P2 को मिल जाएगा. एंड P2 रिक्वायर टू रिसोर्सेज. सो एक तो R1 मिल गया और दूसरा क्या हो गया, इसको R2 मिल गया. सो नाउ इट विल गो फॉर द एग्जीक्यूशन and it will finish the execution. Once it is completing the execution, it will release this resource and it will release this resource also. Okay, now P4 required only one resource which is allocated to process which is allocated to this process P4. Now once it is getting all the resources, it will go for execution and it will release the resource. तो ये भी क्या करेगी, रिलीज कर देगी रिसोर्स को. तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, फ्री हो गया, ये इंस्टांस भी फ्री हो गया. तो इसमें से क्या हो गया, आइदर ये वाला इंस्टांस P1 को असाइन कर दिया जाएगा या ये वाला असाइन कर दिया जाएगा. सो P2 को कितने चाहिए, दो चाहिए थे, P2 को भी दोनों मिल जाएंगी. वंस इट इज गोइंग गेटिंग all the resources, it will go for execution, it will finish the execution and it will release the resources, right? So in this case also there is no deadlock. Okay, so I hope it is clear to all. Now let's see the next question which is related to the deadlock. So in question it is given that there are n process and there are total 6 tape drive. there are total 6 tape drive. तो tape drive क्या हो गया, resource हो गया. So total there are 6 tape drives and each process required 2 tape, right? So each process require 2 tape. Each process require 2 tape. Then find the maximum value for n. Okay,
सो इस n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है. सो मुकेश सेइंग इट इज 3. या दैट मे बी. एकता सेइंग 5. 5 मे बी. 3 दैट माइट बी राइट आंसर. राइट तो बट मैक्सिमम नहीं हो सकता. 3 को पॉसिबल है बट आई थिंक 3 इज नॉट मैक्सिमम. Okay, 5, 5. 5 may be the right answer. Now let us see. So firstly I will tell you the question. Question में क्या कह रहा है? There are n process. तो n process है, ये पता है कि process n है ना. तो n that may be 1 2 3 4 like that. And there are 6 tape drives. ये दे रखा है कि 6 tape drives दे रखे हैं. each process required 2 tapes. हर एक प्रोसेस को कितने 2 टेप चाहिए एग्जीक्यूशन में जाने के लिए. राइट. देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर n. इसका मतलब मैक्सिमम कितनी कितनी प्रोसेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं फॉर डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन. राइट. देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर n फॉर ए डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन. ठीक है. तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? लेट मी टेक 3. P1 P2 P3. तो P1 P2 P3 का मतलब फर्स्ट राउंड में क्या कर दिया, हर एक को 1 1 असाइन कर दिया. सेकेंड राउंड में भी क्या कर दिया, एक एक रिसोर्स असाइन कर दिया. तो टोटल रिसोर्स कितने थे? 6 मेरे पास. और हर एक को 2 2 दे दिए. तो 2 2 दे दिए तो क्या होगा? इट विल कंप्लीट द एग्जीक्यूशन. यस डेफिनेटली इट विल कंप्लीट द एग्जीक्यूशन. या दैट मे बी राइट मुकेश. ओके सो कंप्लीट करेगा एग्जीक्यूशन. सो दिस केस इज वैलिड. 3 को सेटिस्फाई कर रहा है. व्हाट अबाउट, बट ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती. व्हाट अबाउट 4? लेट मी टेक P1 P2 P3 एंड P4. So in the first round what will happen, it will provide 1 1 resources, and in the second round it will provide 1 to this one and 1 to this one. ठीक है. तो क्या करेगा? 1 1 प्रोवाइड कर देगा. तो इस केस में भी क्या करेगा? सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि P1 को 2 रिसोर्स मिल चुके हैं. और वंस P1 इज गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज, इट विल फिनिश द एग्जीक्यूशन एंड इट विल फ्री दिस रिसोर्सेज. So this resource is assigned to this one and next is assigned to this one. Now it will complete its execution and free the resources. Now it will complete the execution, free the resources and so on. So it is satisfying 4 process also. ठीक है. तो 4 process को भी satisfy कर सकते हैं. What about 5? What is P1 P2 P3 P4 and P5? So in the first round it is assigning 1 1 resources. Okay, and in the next round 1 is assigned to this one. So once P1 is getting all resources, it will complete the execution and it will release the resources. ठीक है. तो एग्जीक्यूशन को क्या करेगी? इट विल कंप्लीट एंड रिलीज द रिसोर्सेज. तो इट विल रिलीज द रिसोर्स. तो एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया. अब ये कंप्लीट कर लेगी तो रिलीज करेगी. तो एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा. इसका मतलब सारे के सारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं. तो फाइनली क्या हुआ? दिस 5 प्रोसेस दैट आर ऑल्सो पॉसिबल टू बी सेटिस्फाइड. तो 5 को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं. व्हाट अबाउट 6? लेट्स सी 6. इट इज P1 P2 P3 P4 P5 P6. एक इसको असाइन कर दिया, एक इसको, एक इसको, एक इसको. 4 5 एंड अब यहाँ पे एक इसको असाइन कर दिया मान लीजिए. अब ये क्या करेगी? कंप्लीट करेगी एग्जीक्यूशन. एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया. अब ये कंप्लीट करेगी, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा. ऐसे करके ये एग्जीक्यूट हो जाएगी. यस 6 एग्जीक्यूट हो रही है. या हाउ इट इज हैपनिंग? और ऐसे करेंगे तो फिर 7 भी हो जाएगी. या कैन यू टेल मी द रीजन? व्हाट्स द रीजन? ऐसे तो हो रही है ना.
ओके, सो हियर वी कैन से दैट ये इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सिक्स प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करा देंगे, इस सिनेरियो में पॉसिबल होगा। बट वी रिक्वायर टू पॉसिबल वी रिक्वायर टू पॉसिबल इन ईच एंड एवरी केस, हर एक केस में ऐसा पॉसिबल होना चाहिए, राइट। तो अगर प्रोसेस को इस तरीके से चूज कर, रिसोर्सिस को इस तरीके से चूज कर लिया तो क्या होगा, इफ इट इज P3 P4 P5 एंड P6। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 रिसोर्सिस पड़े हैं, ठीक है, इट इज 1 2 3 4 5 6, और हर एक ने क्या क्या कर लिया, P1 ने एक रिसोर्स को उठा लिया, P2 ने भी एक को उठा लिया, P3 ने भी एक को उठा लिया, P4 ने एक को उठा लिया, P5 ने एक को उठा लिया, और P6 ने भी एक को उठा लिया, राइट। अगर उन्होंने इस तरीके से चूज कर लिया रिसोर्सेज को, राइट, तो उस केस में क्या होगा, नाउ इन दिस केस देयर इज अ डेडलॉक, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर पा रहे थे, बट इस सिचुएशन में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, किसको, सिक्स प्रोसेस को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू चेक फॉर द ईच एंड एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन के लिए वो क्या करे, पास करना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब 6 इज नॉट ए करेक्ट आंसर इज 5 प्रोसेस। सो वैल्यू फॉर n इक्वल टू 5, मैक्सिमम 5 प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं विद डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो डेडलॉक फ्री भी रहेगा, और 5 को क्या करा सकते हैं, एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। जैसे कि 5 में है, 5 में डेडलॉक नहीं आएगा किसी भी केस में, इट इज P1 P2 P3 P4 एंड P5, इस केस में डेडलॉक आएगा ही नहीं। मान लीजिए कि 6 रिसोर्स पड़े हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, इट इज़ 5 एंड 6। एक ये वाला रिसोर्स P1 को दे दिया, ये रिसोर्स P2 को मिल गया, ये रिसोर्स P3 को मिल गया, और ये रिसोर्स किसको मिल गया, P4 को मिल गया, और ये रिसोर्स इसको मिल गया। फिर भी क्या है, मेरे पास एक रिसोर्स बाकी है, वो किसी भी एक को दे दिया जाएगा, और वो कंप्लीट करेगा, रिलीज करेगा, और दूसरे को सेटिस्फाई करा सकते हैं, राइट। तो 5 के केस में कोई भी सिनेरियो ले लेना, उसमें क्या होगा, डेडलॉक नहीं आएगा, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर n इज 5। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल और नॉट। ओके, क्लियर। Good. So now we'll see the next question. Let's see the next question. In the next question, here it is saying there are three process. There are three process. Okay, three process, and each require two resources. Each process require two resources. ठीक है, each process require two resources. Then each process require two resources, and total number of resources are, okay, ये resources ही पूछ रहा है अब तो यहाँ पे। then find minimum number of resource, find a find the minimum number of resources required
minimum number of resource required for deadlock free एग्जीक्यूशन। ओके, कुछ कैंडिडेट्स ने आंसर दे दिया, बट मुझे ये नहीं पता कि किस चीज़ का आंसर दे दिया जब तक आपने क्वेश्चन ही पूरा सुना नहीं है। ओके, सो 3 process are there and each process require 2 resources and find the minimum number of resource required for deadlock free execution। ठीक है, तो डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन के लिए मिनिमम कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आएगी? ओके, एकता सेइंग इट इज 4। ओके 4। हाँ, क्वेश्चन लिखने से पहले रिस्पॉन्स मत किया करो, कुछ कैंडिडेट्स डर जाएंगे जो नए कैंडिडेट्स हैं, है ना। कुछ एक ने कर रखे होंगे इसलिए रिस्पॉन्स कर दिया होगा। ओके, सो दे आर सेइंग दैट 4 रिसोर्स रिक्वायरमेंट। लेट्स सी। So there are 3 process given. Already it is mentioned that there are 3 process, P1, P2 and P3, right? And each process require 2 resource, right? हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्स चाहिए? 2 रिसोर्स चाहिए। देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन। तो मिनिमम कितने रिसोर्स से काम चल जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट टाइम हमने क्या कर दिया, फर्स्ट राउंड में एक एक रिसोर्स असाइन कर दिया इनको, है ना। और फिर क्या चाहिए मुझे, प्लस एक एक्स्ट्रा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है ना। तो एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। फर्स्ट राउंड में एक एक सबको दे देंगे और एक एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो एक्स्ट्रा से क्या होगा, काम चल जाएगा इसका या इनमें से किसी एक का काम चल जाएगा। वंस इट इज कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन इट विल रिलीज द रिसोर्सेज। तो ये रिलीज करेगा, ये इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा एंड सो ऑन, इट विल कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि 4 से हमारा काम चल जाएगा। 3 से चल सकता है क्या? लेट्स सी विद 3, P1, P2, P3। सो एक इसको असाइन कर दिया, एक इसको असाइन कर दिया। तो क्या करेगा, P1 एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद रिलीज करेगा, इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा। ये एग्जीक्यूट करेगा, एक इसको दे जाएगा, राइट, और ये भी कंप्लीट कर लेगा। इस केस में तो 3 से भी हो रहा है, 3 से भी होता लग रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? ओके, सबको एक एक अलोकेट हो जाए तो हाँ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही चीज ध्यान में रखनी होगी कि विल हैव टू चेक फॉर द ईच एंड एवरी सिचुएशन, विल हैव टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी सिचुएशन। अभी तो मैंने क्या किया, 2 रिसोर्स इसको दे दिए और एक इसको दे दिया और एग्जीक्यूट करा दिया। बट इस केस में क्या होगा, ये बट इज P1, P2 एंड P3 और यहाँ पे रिसोर्स पड़े हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R3 को किसने उठा लिया, P1 ने उठा लिया, R2 को इसने उठा लिया और R3 को इसने